from Dharavi Kalakil MPS Secondary School. Today I am going to teach you about the maths one, the paper pattern. I hope you know the paper pattern, but let's revise it and accordingly we will do the study for getting marks. Okay. So now see here, question number 1A. 1A, the question is very lengthy. It seems to be very lengthy, but it's very easy. Only the need is to concentrate on what we have to write exactly. Okay. So see here, for every sub questions, 4 alternative answers are given. Choose the correct answers and write the letter of alphabet of it. Write the alphabet of it. This MCQ's multiple choice question is given to you for 4 marks. All the 4 questions are compulsory. But what space is given to you in all the questions? That write the letter of alphabet of it. Write the letter of alphabet of it. Means the 4 options will be given to you will be in the capital letters like option A, option B, option C and option D. Okay. So in that the space is given to you like you have to write the letter of alphabet of it. Means suppose if your correct answer is option A. So you just need is that write the question number, sub question number 1, 2, 3, 4, whatever it is. For example, it's the first question and the correct option is option D. So write the letter of alphabet. Okay, there is no need to write the answer. Okay, write the letter of alphabet. Okay, so some of the students what they are doing, they're simply writing number 1 and they're writing, for example, answer is 24. So they are writing the 24 instead of writing option D. Okay, so we'll see how to do that. Okay, let's first see all the paper pattern. Then question number 1B. So here in the 4 questions will given to you. All the 4 questions will be compulsory for 4 marks. Question number 1B. Solve the following sub questions. 4 questions will given to you of a very low level. Okay, 1 marks question will be there and you have to solve it. All the 4 questions will be compulsory. So question number 1A, question number 1B. This is compulsory question. You will not get any option over here, like no any extra question will be there. Okay, so both the questions will be compulsory. Okay, this will be 4 marks, this will be 4 marks. So in all 8 marks questions are compulsory. There will be no option. Now question number 2A, complete and write any 2 activities. This is activity type questions. 3 activities will be given to you and you have to solve any 2 activities for 4 marks. Each activity carry 2 marks. Okay, हर activity की जो marks रहेगी उसकी 2 marks रहेगी. When I have started the question, means taken the lectures, I have told you that how to write the activity. Whatever activity is given to you in the question paper, first write on all the activity. Means whatever it is just copy down it into the answer sheet. After that, solve it on a rough paper, or you can use the pencil for solving and just write down simply the answer. Don't solve at the place of answer. Just write down all the activity. Whatever activity is given to you, just copy down it and after that fill up all the boxes. Okay. So 2 activities, 3 activities will be there and you have to solve 2 activities. Each activity will carry 2 marks. Question number 2B. Solve any 4 sub questions. 5 questions will be there and you have to solve any 4 sub questions. Each question carry 2 marks. So in all 8 marks will be there. Okay, so for 8 marks it is very easy, very simple questions will be given to you. Question number 3A. Complete and write any 1 activity. Now here 2 activities will be given to you and you have to solve any 1 activity for 3 marks. So till here all the questions are very simple and very easy. Question number 1A, B, 2A, 2B and 3A. So if you will calculate all these marks, these are very simple. Any middle students, lower level students, those who are not able to solve the higher level questions, they can solve this type of question. Okay, so there will be no any type of difficulty level will be there. Means very low difficulty level is there. Very simple questions will be asked to you. So if you will do till question number 3A, so you will get 23 marks. Okay, 4, 4, 8. Okay, so here you will get 16 marks. After that 2B, 8 marks, 4 marks again. So in all, up to question number 3A, 23 marks is there.
तो आपको इसी पर स्ट्रेस करना है, सबको इसी पर स्ट्रेस करना है कि आपको ट्राई करना है कि आप एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 3A तक आप कंप्लीट कर सको। आप हर स्टूडेंट्स को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक को क्वेश्चन नंबर 3A तक बहुत फ्लुएंटली आना है। ओके, अब रिमेनिंग जो आपके 17 मार्क्स है उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू योर स्टडीज एंड यू हैव टू टेक द एक्स्ट्रा एफर्ट, यू हैव टू टेक द एक्स्ट्रा लेक्चर्स। ओके, तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है। अगर आप लोगों ने जितने प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए जा रहे हैं, अगर आप वो सब सॉल्व करते हो एंड रिलेटेड क्वेश्चंस इफ यू आर सॉल्विंग, then it is very easy to get the 23 marks. So if you will do in both the papers 23 and 23, so you will get the 46 marks. And for example, if you are getting 20 marks internal marks, so easily you are getting the 66 marks in your maths paper. Now imagine first class marks you are getting just if you are solving up to question number 3A. बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन, हम हर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आपको इसी वे में स्टडी करना है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1A के लिए क्या करना है, मुझे कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज को सॉल्व करने हैं। आपको ये क्वेश्चन टाइप के हिसाब से आपको स्टडी करना है। अब आपको इनऑल स्टडी नहीं करना है, अब आपको जो स्टडी मेथड मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर आपको जितने भी, आपको 4 चैप्टर्स है फॉर मैथ्स 1, यू आर हैविंग ओनली 4 चैप्टर्स। ओके, linear equation into variables, quadratic equation, arithmetic progression and probability. You are having only 4 chapters. अब आपको इस 4 chapters में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन बैंक आपको रेडी करना है। ओके, आपको क्वेश्चन बैंक रेडी करना है। क्वेश्चन बैंक किसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1A ऑल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, आपको क्या करना है, हर चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको निकालने हैं, उसका क्वेश्चन बैंक रेडी करना है। आपको हर चैप्टर्स के निकालने हैं एमसीक्यूज। आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ फ्रॉम टेक्स्ट बुक, फ्रॉम द 21, फ्रॉम एनी फ्रॉम द प्रैक्टिस पेपर्स, यू कैन टेक ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर 1. First write down all the MCQs, multiple choice question of lesson number 1, after lesson number 2, then lesson number 4 and lesson number 5. Okay, आपको ऐसे हर चैप्टर्स को लेना है, आपको क्वेश्चन बैंक रेडी करना है। आप अभी से अगर करना स्टार्ट करते हैं तो इट विल टेक हार्डली 15 डेज टू प्रिपेयर द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक रेडी करने के बाद आपको उसी के थ्रू जाना है आपकी स्टडी को लेकर। अब आपने फॉर एग्जांपल इसका बना लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1B लेना है। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे पहले आपको हेल्प लेनी है फॉर प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस पेपर्स आपको लेने हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 1B, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको क्या करना है, अलग अलग रेफरेंसेस लेने हैं, अलग अलग प्रैक्टिस बुक्स में से, टेक्स्ट बुक में से, 21 में से, आपके पास जितने भी मटेरियल्स है, यूज ऑल द मटेरियल्स। It's not important to keep all the materials, it's important to use that material. Okay, तो आपको यूज करना है। आपको यूज करने के बाद मैंने आपको सबसे पहली चीज जो आपको बता रही हूँ, आपको क्वेश्चन बैंक रेडी करना है। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 1B में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको उसको लेना है, आपको उसको सॉल्व करते जाना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A ऑब्वियसली इट्स एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो एक्टिविटी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक लेना है, और जो सॉल्व एक्टिविटीज होती है, अनसॉल्व एक्टिविटीज होती है, टेक ऑल दैट एक्टिविटीज, राइट डाउन इट। ओके, प्रिपेयर अ क्वेश्चन बैंक फॉर एक्टिविटी आल्सो। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, समटाइम इट हैपेंस लाइक whatever activity you have solved, sometimes the syllabus which is given to you in the books, in your reference books, that are different, and the boxes which is given to you in the question paper, that is different. Okay, ऐसा होता है कि अभी मैंने स्टडी किया कि इस बॉक्स में 24 आंसर आना चाहिए। अब क्या हो गया कि आंसर शीट में 24, क्वेश्चन पेपर में 24 ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो अब आप बोलेंगे अभी यहाँ पर कुछ और दे दिया था, कुछ और आपको सिलेबस पूछा है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग। तो जब आप एक्टिविटी सॉल्व करते हो, तो जस्ट डोंट गिव स्ट्रेस ऑन द बॉक्सेस, जस्ट गिव द स्ट्रेस द टाइप ऑफ क्वेश्चन, कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा है, वेदर यू आर एबल टू डू टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपको है क्या एबिलिटी, तो आपको पूरा सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व करते आ गया, तो अब आपको एक्टिविटी में कोई भी टाइप का आपको दे दे, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2A एक्टिविटी है, अब क्वेश्चन नंबर 3A एक्टिविटी है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2A and 3A दे आर द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2A में आपसे कोई 2 एक्टिविटी पूछता है, क्वेश्चन नंबर 3A में आपसे कोई 1 एक्टिविटी पूछता है। सो इन ऑल 3 एक्टिविटीज आर देयर। ओके, तो आपको ये पूरे एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन है आपको उसका क्वेश्चन बैंक अलग रेडी करना है। ओके, एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी में आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, 2A एंड 3A। ओके, अब आपको इसका रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B, इसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, तो आपको इसका क्वेश्चन बैंक रेडी करना है। एटलीस्ट हर स्टूडेंट को, each and every student must prepare the question bank from question number 1A till question number 3A। आपको यहाँ तक करना ही करना है। Okay, and after completing these, if you are having the time, if you wanted to achieve more marks, if you wanted to get the more marks, then go to the question number 3B, 4A, sorry, question number 4 and 5, these 3 questions। अब आपको इसके लिए अलग से क्वेश्चन बैंक रेडी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3A जो होता है, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चन, यहाँ पर भी 3 मार्क्स क्वेश्चन है, आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन। अब ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, एनी 2 आपको सॉल्व करना होता है और ये ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, हर एक का 4 मार्क्स होता है। तो ये क्या होते हैं ना, ये आपकी नॉलेज पर, आपके एप्लीकेशन पर, दे आर द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपने क्या सीखा, अगर आपको कोई भी कंडीशन दे दी जाती है तो हाउ यू विल सॉल्व दैट कंडीशन। तो दीज आर द, ये जो क्वेश्चंस होता है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, यहाँ पर ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको इसके लिए बहुत सारा टाइम देना होगा फॉर डूइंग द प्रैक्टिस। तो ये डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर आपका हाई होने स्टार्ट होता है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3B में आपका मिडल डिफिकल्टी लेवल होता है, यहाँ पर हाई हो जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एनी 1 एंड दैट विल बी फॉर 3 मार्क्स। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन, ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, दीज आर द चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, आपको इसके लिए बहुत गाइडेंस देना पड़ेगा, आपको बहुत सारे रेफरेंसेस, आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज मैथ इज द नेम ऑफ प्रैक्टिसिंग। ओके, आप विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग द मैथ। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3A तक क्वेश्चन बैंक रेडी करना है विद इन 15 डेज फॉर मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 फॉर बोथ। ओके, आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार सारे क्वेश्चन बैंक रेडी कर लिए तो अब आपके पास क्या होगा, नाउ यू आर हैविंग ऑल द क्वेश्चंस बैंक विथ यू, नाउ जस्ट नीड टू डू द प्रैक्टिस। अब आपको बार बार ये बुक ओपन नहीं करना है, वो बुक ओपन नहीं करना है, ये इसका रेफरेंस नहीं लेना है, इसका रेफरेंस नहीं लेना है। अब आपके पास सिंपल, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक आ चुका है ना, अब आपको क्या करना है, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना है। नाउ इट विल सेव योर टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास प्रिपरेशन के लिए या हमारे रिवीजन करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सब प्रैक्टिस पेपर देखें, रेफरेंस बुक्स देखें, हमारी टेक्स्ट बुक देखें। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर एक बुक को लेके जाए, हम उसको एक तो डिटेल्स में जाते जाए कहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन है। सो द बेस्ट वे टू प्रिपेयर द क्वेश्चन बैंक, हर सब्जेक्ट के लिए आप ये मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन बैंक एंड यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, तो आपने अगर एक बार ये रेडी कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ यू हैव डन हाफ ऑफ योर वर्क। नाउ हाफ ऑफ द वर्क इज प्रैक्टिसिंग, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव all the teachers have explained all the chapters to you. Okay, but still if you needed any guidance, so you can take the guidance from the teachers, from us. Okay, तो ये आपका पेपर पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1A फॉर 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1B फॉर 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2A फॉर 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2B फॉर 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3A फॉर 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3B फॉर 6 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर 8 मार्क्स and question number 5 for 3 marks. So in all there will be the 40 marks paper. Okay, only question number 1A and 1B, these are the compulsory questions, no options will be given to you, but they are very easy. Okay, तो यहाँ पर आपको हार्डली, अब यहाँ पे आपको 23 है, आपको मिनिमम 23 में से आपको 20 तो मिलने ही चाहिए। एनी हाउ यू मस्ट गेट 20 मार्क्स। ओके, यहाँ पर आपसे अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ तक फ्लुएंटली आते हैं तो आपको 20 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक सबसे पहले आप लोग रेडी करो, क्वेश्चन नंबर 3A तक का आपको क्वेश्चन बैंक रेडी करना है। अब आप क्वेश्चन बैंक में 2A और 3A जो एक्टिविटी है, आप इसका एक ही क्वेश्चन बैंक रेडी करो।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का अलग रहेगा, ए का, बी का अलग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड 3 दे विल बी कॉमन एंड क्वेश्चन नंबर 2 बी। ओके, तो पहले आप लोग प्रिपेयर कर लो, उसके बाद आप उसके थ्रू आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 बी। सम ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 1 बी, so we will discuss that type of question. Okay, if anyone have any doubt in paper pattern, so they can ask me. After that I will start question number 1 b. Unmute yourself and ask me. आपको पेपर पैटर्न में कुछ नहीं समझा होगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो यही समझना चाहिए कि कहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। टीचर यही पेपर पैटर्न है मिस। ऑनलाइन पेपर पैटर्न। हेलो मिस, क्वेश्चन नंबर 4 का आप क्या बोल रहे हैं? मतलब वो हम लोग को क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना रहेगा क्वेश्चन बैंक। मैं आपको ये बोल रही हूँ क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में ना बेटा पूरे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं, सब चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहते हैं। क्या बोल रहे हो मिस? ये चलेगा ये वाला? क्या? ये देखो ना मिस, ये वाला। हाँ, बहुत बेस्ट है ये, बहुत अच्छा है ये। यस, यू कैन यूज दिस। हाँ, तो इसमें आपको मिलेगा, लेकिन क्या है ना, इसमें फिर भी बहुत कम कवर किए। अभी आप लोग क्या करो, जितने भी आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स हैं या आपके पास जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, तो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आप उसको भी निकालो, और उसको निकालने के बाद आप उसको स्टडी करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आपको? उसमें दिया हुआ है, जो आपने जो मुझे बताई है ना बुक, उसमें दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंगली है दिया हुआ, उसमें सारे टफ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के लिए बेस्ट है वो बुक। मिस इसमें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है। तो यस, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम देगा चैलेंजिंग क्वेश्चंस में। आपको कोई इक्वेशन दे सकती है, आपको कुछ और कंडीशन दे सकती है, बट दैट बुक इज बेस्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। मिस कितने मार्क का रहता है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर? क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स का होता है, तो इन ऑल 11 मार्क्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कोई 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कोई 2 सॉल्व करना रहेगा। मतलब आपके पास बेनिफिट है कि आपके पास एक ऑप्शन में रहेगा, वॉट एवर इज इजी फॉर यू चूज दैट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास एक ऑप्शन है, कोई 2 दिया रहेगा, आपको कोई एक करना रहेगा। मिस और इसमें और सब होता है कि नहीं इतना प्रॉब्लम, इसमें यही प्रॉब्लम था, वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा। तो वर्ड्स प्रॉब्लम जो है ना, तो आपको उसी को, मैंने देखा है वो बुक, मैं खुद बच्चों को बोलती हूँ उसको रिफर करो, आप उसको रिफर करो, बहुत बेस्ट बुक है वो। और आप उस बुक को रिफर करके आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इजीली आप अपना निकाल सकते हो। जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो नीचे जा रहे, बिकॉज दिस क्वेश्चन आर वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 1 टू क्वेश्चन नंबर 3A, दे आर वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन आपको मैं यही बात बता रही हूँ, आपको हर एक का क्वेश्चन बैंक रेडी करना है, क्योंकि आपने अभी जो बुक मुझे बताई है that is only for question number 4 and 5, and some of the time the question asked in the question number 3B also. तो आपको मैं ये बोल रही हूँ कि आपको इसका क्वेश्चन बैंक रेडी करना है। आपको एक नोटबुक लेनी है, आपको उसके अंदर चैप्टर वाइज जितने भी हैं, आपको पूरा उसका क्वेश्चन नंबर 1A, आप उसका पूरा जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चंस है ना, आपको उसका पूरा आपको निकाल के रखना है। मिस में दिया ना पूरा बैंक बनाना है। 21 सेट मिला वाला, 21 सेट मिला ना अपना अभी। यस, उसने सब दिया है और ये वाला सब दिया हुआ है। यस, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक से भी लेने हैं। कुछ अब टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं, अब वो पूरे की पूरे 21 में नहीं है, नहीं है मिस, नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, अब जितने भी MCQs है, 4 चैप्टर तो आपके पास है, आपके पास तो 4 चैप्टर है, उस चारों चैप्टर के आपको MCQ वो भी निकाल लेने हैं, आपको 21 में से भी निकालना है, आपके पास जो प्रैक्टिस पेपर्स है उसमें से भी निकालना है। आपको 3 जगह से गैदर करना है, जो आपको 21 दिया हुआ है वो, जो प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है वो, और जो आपके पास टेक्स्ट बुक है वो, आपको तीनों में से निकाल के आपको क्वेश्चन बैंक रेडी करना है। आई समझ में बात? हाँ मिस वही तकलीफ था थोड़ा सा। हाँ, तो यही बोल रही हूँ मैं आपको कि आपको एक चीज पर रिलाय नहीं करना है, आपको कहीं से भी चांस नहीं लेना है कि कहीं से मेरे मार्क्स कट जाए, आपको कहीं से चांस नहीं लेना। डोंट टेक अ 0% चांस। ओके, तो यहाँ पर आपको 3 जगह से गैदर करना, और सबको गैदर करके आप क्वेश्चन बैंक बनाओ,
क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद आप लोग को खुद रियलाइज होगा कि हाउ इजी टू स्टडी मैथ, बहुत इजी आपको लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा बस ये जो है दिस इज माय वर्ल्ड, और इसी में से कोई भी कुछ भी आने वाला है, आपका कुछ भी स्किप नहीं होगा। मिस इसमें क्वेश्चन में तो कैसे समझते हो, जल्दी नहीं समझता मिस। क्या नहीं समझता है? क्वेश्चन नहीं समझता है वर्ड प्रॉब्लम का जल्दी से। वर्ड्स प्रॉब्लम का, तो वर्ड्स प्रॉब्लम की टेक्निक ये होती है, जब मैंने इससे पहले लेक्चर दिए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि ऑलवेज आपको क्या करना है कि वर्ड्स प्रॉब्लम को ब्रेक कर करके समझना है। आप एक बार में नहीं समझ सकते उसको, एटलीस्ट रीड इट थ्राइस, आप कम से कम 3 बार उसको पढ़ो, उसके बाद आप उसको ब्रेकिंग स्टार्ट करो। क्योंकि हर वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होती है, जब आपको इक्वेशन बनाने के लिए आता है तो ब्रेकिंग होती है, कहीं ना कहीं पर कॉमा होता है, कहीं पर फुल स्टॉप होता है, तो हाँ आप मिस उसको समझो, होता है ना। तो कॉमा क्यों दिया हुआ है, ताकि आप उतने पार्ट को अलग समझो, उसके बाद वाला पार्ट वो अलग हो जाएगा। जब आप इस चीज पर गौर करेंगे, व्हेन यू विल थिंक ओवर इट, तब आपको समझ में आएगा कि यस इट इज वेरी इजी। क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम को क्या होता है, फर्स्ट कन्वर्ट इट दी ओन लैंग्वेज, वॉट एवर इज योर लैंग्वेज। आप जब उसको समझ लोगे तब बहुत इजी हो जाएगा, फिर आप उसको कॉमा पर फुल स्टॉप पर आप उस पर ध्यान देना स्टार्ट करो। पहले तो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर कर लेना है, आपको यहाँ तक कि वर्ड्स प्रॉब्लम तो आती नहीं है, नहीं उसके मिस। बाद से ही आती है। यस, तो आपको पहले 3A तक क्लियर करना है, पहले अपने आप का क्वेश्चन बैंक आप लोग पूरा रेडी कर लो 3A तक, उसके बाद आप वर्ड्स प्रॉब्लम कर जाओ। आपको पहले अपने 23 मार्क्स को बिल्कुल सिक्योर करना है, बिल्कुल एकदम सिक्योर करना। उसके बाद आपके पास जो टाइम आप उसको फोकस करो फॉर 17 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करने वाली हूँ, अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1B के कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज तो मैंने आपको बोल दिया, अब आपको पूरे गैदर करने हैं और गैदर करने के बाद आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1B के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम थोड़े से उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। So now let's see. So the first question is from the linear equation in two variable. ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। Write the equation in a general form. आपको पहली बात तो जनरल फॉर्म आना चाहिए, और कैसे उस आंसर को प्रेजेंट करना, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, यू मस्ट नो दैट ऑल्सो। राइट द इक्वेशन 3x is equal to 4y minus 12 in general form. Now what is the general form? What is the general form? Now this is linear equation in two variable. This is not the quadratic equation. This is not quadratic equation. Okay, ये quadratic equation नहीं है, तो आपका रहेगा ax. So when you will present your answer, so how you will present your answer? You first know the general form of linear equation in two variable. So the general form is, okay, so the general form is ax plus by plus c is equal to 0. This is the general form. You must know the general form first, as it is not quadratic equation. This is linear equation in two variable. Okay, so ax plus by plus c is equal to 0. Okay, so you must know the general form. So first write down general form. After that, therefore 3x is equal to 4y minus 12. Then just do it according to your general form. 3x, now this plus 4y will shift here. This is positive, it will become negative. Minus 4y minus 12 will shift from right hand side to left hand side. Plus 12 is equal to 0. So this is your answer for 1 marks. How to write in a general form? So first write down the general form. What is the general form? Afterwards, change it according to the general form, and that will be your answer. Just highlight your answer. So this is the way to present your answer for 1 mark. Question number 1B. Now the question can be asked. Yes, any query is there?
No, miss. Okay. After that, the same question can be asked for the quadratic equation also. Okay. For the quadratic equation, write the equation. For example, write the equation 4x square is equal to 5x minus 12 in general form. Now this is quadratic equation because square is given to you in general form. So you must know the general form of quadratic equation also. So you first write down in the solution. The general form is ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general form for quadratic equation. तो पहले आप उसका जनरल फॉर्म लिखो. First, just go through the question. What is the question? Whether it is from the quadratic equation or from the linear equation in two variables, and then accordingly write down the general form. And after that, rearrange it. Therefore, 4x square is equal to 5x minus 12. 4x square. Now shift this from right hand side to left hand side. 5x will become minus 5x. Minus 12 will become plus 12 is equal to 0. Now this is the general form. तो जनरल फॉर्म के क्वेश्चन बहुत कॉमन है. इन क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत कॉमन है इस टाइप क्वेश्चन. तो आपको प्रिपेयर रहना है फॉर बोथ द जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो और आपको सबसे पहले यही करना होता है कि आपको उसका जनरल फॉर्म लिखना होता है कि आप किस का जनरल फॉर्म लिख रहे हो. व्हाट इज द जनरल फॉर्म? तो ये जनरल फॉर्म है ax square plus bx plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0. तो पहले आपको लिख लो, उसके बाद आप उसको अरेंज कर दो. ओके. तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना. 100% दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड. नाउ द सेकंड क्वेश्चन asked in question number 1b, that is to find out the value of variable. अब यहाँ पर आपसे वेरिएबल की भी टाइप क्वेश्चन कहती है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 3x plus y is equal to 7 if y is equal to 1. Now this is the question from linear equation in two variable. ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं x and y. So this is the question from linear equation in two variable. Now you have to find out the value of x and the given value is y is equal to 1. So the solution, when you will write down the solution, first you will write down the equation 3x plus y is equal to 7. This is the question. If, or you can write put x is equal to, put y is equal to 1 in equation. Only one equation is there, so there is no need to write the numbering. आपको जब भी एक ही इक्वेशन दी रहेगी तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप उसका नंबरिंग. सिंपल राइट पुट y is equal to 1 in equation. ओके. आपको यहाँ पर इसको नंबरिंग नहीं देनी है. नंबरिंग कब देनी है? जब आपके पास दो इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो, तब देनी है. ठीक है. So simply write down the equation and after that write down the answer. Now y is equal to 1. You have to put 3x plus y is equal to 1. Therefore write down here 1 is equal to 7. Now solve it. Plus 1 will shift from left hand side to right hand side. So 3x is equal to 7 minus 1. 3x is equal to 7 minus 1, 6. Therefore x is equal to 6 upon 3. 6 upon 3 means 3 1s are 3, 3 2s are 6. Therefore x is equal to 2. So this is your answer. तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम में बहुत आता है. आपको इस पर मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ बार बार कि क्वेश्चन नंबर 1b में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. आपको सारे क्वेश्चंस को गैदर करना है. जब आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे कहां पर किस क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है. ओके. तो यहाँ पर आगे आप लोगों का ये क्वेश्चन भी आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या वाई वाइस वर्सा. ओके.
उसके बाद हम देखेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन फॉर ड्राइंग द ग्राफ। ग्राफ के क्वेश्चन जो है ड्रॉ करने के लिए वो क्वेश्चन नंबर 1B में या 2 में नहीं आते। आप क्वेश्चन नंबर 3A तक अगर आप सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब ये कि आपको कहीं पर भी ग्राफ ड्रॉ नहीं करनी है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे कंफ्यूज ओके व्हेन दे आर रीडिंग द क्वेश्चन फॉर ड्राइंग द ग्राफ एज दे आर रीडिंग फॉर ड्राइंग द ग्राफ immediately they are asking for the graph paper. They are thinking they have to draw the graph. No, for drawing the graph means अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़े मतलब आप उसको बोला नहीं है कि ड्रॉ द ग्राफ। फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ 2x minus 3y is equal to 3. If x is equal to minus 3, find the value of y. आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, जैसे इससे पहले हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन है, ओनली द मेथड हैज बीन चेंज। आपसे डायरेक्टली पूछा था वहां पर कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपको दिया हुआ था। नाउ दे हैव ट्विस्टेड द क्वेश्चन फॉर ड्राइंग द ग्राफ 2x minus 3y is equal to 3. If x is equal to minus 3, find the value of y. Simply follow the same method which we have followed in the previous. Okay, so solution. In the solution, you will write down the equation. As I told you, only one equation is given to you, so there is no need to write giving the number. 2x minus 3y is equal to 3. Now put x is equal to minus 3. Now this is the value given to you. Okay. Now 2 into minus 3. As it is negative number, use the small bracket. Minus 3y is equal to 3. Now 2 3s are 6. 2 3s are 6. This is negative number, so minus 6 minus 3y is equal to 3. Now take minus 6 from left hand side to right hand side. Minus 3y is equal to minus 3 plus 6. It will become 9. So minus 3y is equal to 9. Therefore, y here minus y is equal to 9 upon 3. Some of the students they confused. Here minus 3y is given to you. What they are doing? They are doing the addition. No, that will be wrong because in between 3 and y there is a multiplication sign. So you will divide when you will changing the sign. So minus y. So 3 1s are 3, 3 3s are 9. So minus y is equal to 3. Therefore, y is equal to minus 3. Very simple. बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपको बस क्या करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, या तो जैसे मैंने पहले कराया या 20 टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या थोड़ा सा था, यहाँ पर y के साथ निगेटिव साइन था। व्हेन यू विल राइट डाउन द आंसर, जस्ट रिमूव द negative sign from the variable, give it to the numbers. Okay, so this is the question which can ask. इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1B में मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन बैंक निकाल के रखे हैं. अब आपको आपका खुद का ओन प्रिपेयर करना है. अब उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनर. फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac. इट कैन आस्क फॉर बोथ द पैटर्न. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac. If a is equal to 2, the question is direct question. b is equal to -8, c is equal to 5. आपको a, b और c की वैल्यू आपको दिया हुआ है. आपको सिंपल क्या करना है, उसको पुटअप करना है. So when you will write down solution, so in solution you will write a is equal to 2, b is equal to -8,
C is equal to 4. Therefore, B square minus 4AC is equal to, now put the value. Now the value of B is minus 8. So minus 8 square minus 4 into, what is the value of A? 2. What is the value of C? 5. Now solve it. The square of negative number will always positive. 8 8 is 64 minus 4 2 is 8, 8 5 is 40. Now do the subtraction. So you will get 24 as your answer. So B square minus 4AC is equal to 24. तो ये क्वेश्चन भी आता है आपको. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. If you want to take the screenshot, you can take the screenshot. अब उसके बाद इसी टाइप के एक और क्वेश्चन आता है, वो हम देखेंगे. Find the value of discriminant. Both question have the same meaning. Only it has been twisted. So the next question is find the value of discriminant. Discriminant means b square minus 4ac. आपको या तो डायरेक्टली बोलेगा b square minus 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करो, या तो डायरेक्टली बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ discriminant. Find the value of discriminant of quadratic equation. Quadratic equation 5m square minus m is equal to 0. Now here, first what you will do? First you must know what do you mean by the discriminant. So discriminant means b square minus 4ac. आपको यहाँ पर ही जज कर लेना है कि आपको करना है क्या, b square minus 4ac. After that आपको स्टार्ट करना, सॉल्व करना. So what is the question? What is the equation? अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन लिख के उसमें से a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So equation is 5m square minus m is equal to 0. Now आपको पहले इसको कंपेयर करना है. Compare with, when you will compare it, you will easily get the value of a and b and c. Ax square am square minus bm plus c is equal to 0. am square minus bm plus c is equal to 0. Now what is the value of a? What is the value of a? A is equal to 5. B is equal to, what is the value of b? Here nothing is given to it, means 1 is there, minus 1, and c is not given to it, means that is 0. So on comparing, you will get the value of a, b and c. Afterwards, discriminant b square minus 4ac is equal to, now put the value, minus 1 bracket square minus 4 into 5 into 0. When you will multiply any number with the 0, you will get answer 0. 4 5s are 20, 20 zeros are 0. And what is the square of 1? 1. So 1 minus 0, you will get answer 1. Answer is very simple. Solution is very simple. Only the method is quite twisted. तो आपको डिस्क्रिमिनेंट का मतलब समझ में आना चाहिए. What is the meaning of discriminant? Discriminant का मतलब होता है b square minus 4ac, इसको डेल्टा भी बोलते हैं. ओके, b square minus 4ac को डेल्टा भी बोलते हैं. तो डेल्टा आए, b square minus 4ac आए, डिस्क्रिमिनेंट आए, all these three things are only one. ओके, तो आपको इक्वेशन लिखना है. इक्वेशन लिखने के बाद आपको a b c की वैल्यू निकालनी है, उसको सॉल्व करना है. इसमें क्या नहीं समझा आपको? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 1b का क्वेश्चन है ये. इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसके अंदर. ओके, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड. इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आता है. तो डिस्क्रिमिनेंट, यस मैम, ये 46 कैसे आया? वेयर लास्ट b स्क्वायर माइनस 48, नहीं 4a. b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द फॉर्मूला ना. डिस्क्रिमिनेंट, discriminant means delta. Delta means b square minus 4ac. So ac, a, what is the value of a? That is 5. Minus.
डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना। यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करो। ऑल द 3 क्वेश्चंस आर सेम। ठीक है, तो आपसे कभी डायरेक्टली पूछता है, कभी आपसे इनडायरेक्टली पूछता है। उसके बाद और जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। व्हाट आर द रूट ऑफ, व्हाट आर द रूट ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x square is equal to 9. What are the root of? You know that variable has two value. X square is equal to 9. Now आप उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बट आपको पता है कि when you are doing the square root, you must know whatever is the answer, the negative and positive both the form. तो आपसे यहाँ पूछा what are the root of x square is equal to 9. So when you will solve, so every variable has two roots. So x square is equal to 9. Therefore, x is equal to -3 or +3. Okay, on doing square root, take out square root. आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 and +3. So -3 and +3 are the roots of 9. Are the roots of x. Sorry, are the roots of x. तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। कभी कभी आप लोग इतने सिंपल क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हो। सो मुझसे भी जितना मैं निकाल पा रही हूँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, वो मैं निकाल के आपको बता रही हूँ। मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन बैंक रेडी करना है। दिस इज माय क्वेश्चन बैंक। अभी मुझे समझ में आ गया किस टाइप का क्वेश्चन आता है, so I will be prepared for this type of question. Maybe the numbers will change. X square is equal to 25, or they will ask y square is equal to 25. But how to solve the question? What is the meaning of question? ये आपको इससे समझ में आएगा। अब आपको एक बार आपने देख लिया, अरे इतना इजी है ये, ओके, अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगी। बट अगर आप इसको सॉल्व नहीं किया है तभी क्या प्रॉब्लम होगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर क्या लिखना है। You know how to solve, but you don't know that pattern, whether it's correct or not. तो अगर आपने एक बार भी इसको सॉल्व कर लिया है तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आई एम एबल टू सॉल्व दैट। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं इन 1 मार्क्स। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है जो आपको रेडी करने, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। अब देखो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें से भी आता है, राइट द 100 टर्म ऑफ एन एपी 2 2 2 2. Now the first term is 2, second term is 2, third term is 2, so it means that all terms are 2. ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, राइट द 100 टर्म। अभी आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मुझे T100 फाइंड आउट करना है ना, जबकि आंसर बहुत सिंपल है। आपसे क्या पूछा है, राइट द 100 टर्म ऑफ एन एपी 2 2 2 2। उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअसली सेम नंबर है, कंटिन्यू नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 100 टर्म भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो यू हैव टू राइट हियर 1 लाइन। तो आपको क्या करना है, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, आप जब इस क्वेश्चन बैंक को आप रेडी करोगे एट दैट टाइम आप लोग प्रिपेयर हो जाएगा आपको कैसे आंसर लिखना है। तो अब यहाँ पर क्या इसका आंसर रहेगा, व्हाट विल बी द 100 टर्म, द 100 टर्म विल आल्सो 2, सो द 100 टर्म of an AP is 2 because it has common difference 0. कॉमन डिफरेंस 0 आएगा ना, 2 - 2 0, 2 - 2 0 0। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 0 है। जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो ऑल द टर्म्स विल बी सेम। बस आपको ये सिंपल सेंटेंस लिखना था, व्हाई द 100 टर्म इज सेम।
Okay, so the 100 term of an AP is 2 because it has common difference 0. Okay, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे T100 फाइंड आउट करना है, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आप क्वेश्चन पर देखो, अरे वो 1 मार्क्स के लिए, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है. दैट यूज योर कॉमन सेंस. सो हियर यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस. ओके. Yes, Sony, do you want to ask any question? Now, the type of question asked. If for an AP, T2 means second term is for D is equal to -2, find the value of A. A means first term. A means first term. T2 आपको दिया हुआ है, D आपको दिया हुआ है. When you are writing the formula common difference, so what is the first formula you are writing? You are writing T2 minus T1. करेक्ट. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको T1 फाइंड आउट करना है. So what is given to you? T2 is equal to 4, D is equal to -2, A and T1 you have to find out. तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉमन, आपको थोड़ा स्ट्रेस देना है कि D T2 दिया हुआ T1 फाइंड आउट करना. तो D is equal to T2 minus T1, ये यूज करना है. D is given to you -2, T2 4 minus T1. Now take this 4 here, -2. This is plus, it will become minus. -4 is equal to -T1. -2 -4 -6 is equal to -T1. Minus and minus will cancel. Therefore, T1 is equal to 6. T1 means A. Therefore, A is equal to 6. तो बहुत सिंपल होता है. आपको थोड़ा सा बोली ना मैं, आपको थोड़ा सा, अभी कोई बच्चे इस क्वेश्चन को देखेगा तो क्या करेगा, Tn का फॉर्मूला यूज करेगा. Tn is equal to A plus n minus 1D. फिर क्या करेगा, n की वैल्यू 2 रखेगा, T2 की वैल्यू रखेगा, A की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करेगा. तो यही मैं आपको समझा रही हूँ. आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, एंड यू हैव टू यूज योर शॉर्ट मेथड. दिस इज अ शॉर्ट मेथड. ओके, तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है. ओके, किसी को समझना है? Can we stop you, ma'am? Yes, ma'am. So, students, we will continue on Monday. Okay, we will go through the same question number 1B. Okay, I have collected many questions. Prepare your own question bank. We will discuss that. Okay, if you are getting any new question, just share with me. Okay, we will discuss in Monday lecture. Okay, thank you, ma'am. Thank you, students. Thank you, ma'am. Thank you very much. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you.